Hello students, now we continue our chapter 5 continuity and differentiability. Exercise 5.1 question number second. Question number second is what? Examine the continuity of the function fx is equal to 2x square minus 1 at the given point x equal to 3. Let me start. We are given function fx is equal to 2x square minus 1. First, evaluate the limit of this function at the given point x equal to 3. So, limit x approaches to 3, f of x is equal to limit x approaches to 3, fx is 2x square minus 1. So 2 multiplied by 3 square minus 1. 3 3 is 9, 2 is 18 minus 1. 18 minus 1 is 17. So now f of 3 is equal to 2 multiplied by 3 square minus 1. 18 minus 1 equal to 17. We get limit x approaches to 3. F of x is equal to f of 3. F of 3. This satisfies the definition of continuity. Therefore, given function fx is continuous at x is equal to 3. Now, question 3. First part, f of x is equal to x minus 3. We have to examine the continuity of these functions. So, domain of this function is what? Domain of this function is set of real number. Set of a real number. Let x is equal to a belongs to domain of given function. a कोई जनरल पॉइंट ले लिया जो डोमेन के हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हो. So limit x approaches to a, f of x is what? Limit x approaches to a, x minus 3. और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? a minus 3. Again f of a is a minus 3. Both value are equal as limit x approaches to a, f of x is equal to f of a. Therefore, f of x is continuous at x is equal to a. और a क्या था बेटे? Belongs to domain of given function. Therefore, fx is continuous function. F of x is continuous function. Second part, f of x is equal to 1 by x minus 5 or x does not equal to 5. Let x is equal to a belongs to domain of x. इस फंक्शन में डोमेन क्या है? r minus 5. 5 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन है. अगर 5 यहाँ पे रखेंगे तो 1 by 0 बन जाएगा और 1 by 0 क्या आएगा? नॉट डिफाइंड. देयरफॉर 5 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है. x इक्वल टू a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ 5, यानी कि a की वैल्यू 5 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी. लिमिट x अप्रोचेस टू a, f of x इज इक्वल टू लिमिट x approaches to a 1 by x minus 5 और ये वैल्यू आ जाएगी 1 by a minus 5. Again evaluate f of a which is equal to 1 by a minus 5. जहाँ जहाँ पे x है उसको किससे रिप्लेस कर दो? a से रिप्लेस कर दो. We get both value are equal. So limit x approaches to a, f of x is equal to f of a. Therefore, this function is continuous for all x is equal to a belongs to domain of the function. ये function भी क्या है? Continuous है. Part 3. fx is equal to x square minus 25 upon x plus 5. x is not equal to minus 5. फिर से let x equal to a belongs to domain of f. भाई डोमेन के अंदर ले रहे हैं और इस फंक्शन की डोमेन क्या है? r minus 5.
ये फंक्शन 5 के -5 पे डिफाइंड नहीं है। फंक्शन -5 पे डिफाइंड नहीं है। -5 पे 0/0 फॉर्म बन जाएगी बेटा, विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। लिमिट इवैल्यूएट करो, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x is equal to limit x approaches to a x square minus 25 upon x plus 5। और ये क्या आ जाएगा, लिमिट x approaches to a x square minus 25 को 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, a square minus b square, a plus b और a minus b, x plus 5 और x minus 5 डिवाइड बाय x plus 5, x plus 5 से x plus 5 कैंसिल हुआ। ये है लिमिट x अप्रोचिंग टू a x minus 5 और वैल्यू क्या आ जाएगी, a minus 5। वैल्यू क्या आएगी बेटा, a minus 5। अगेन evaluate f of a which is equal to a square minus 25 divided by a plus 5। x को किससे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे a से रिप्लेस किया। इस पे फिर से आइडेंटिटी ऑपरेट करो, ये आ जाएगा a plus 5 और a minus 5 डिवाइड बाय a plus 5, डिवाइड बाय a plus 5। a plus 5 से a plus 5 कैंसिल हुआ, क्या बचा, a minus 5। we have as limit x approaches to a f of x is equal to f of a, therefore fx is continuous function at x is equal to a belongs to domain of f। यानी डोमेन के हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन क्या आया, कंटीन्यूअस फंक्शन आया। दूसरा आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो बेटे, ये ऊपर वाला कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे होते हैं कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस डिवाइड बाय कंटीन्यूअस, ये भी फंक्शन क्या आएगा, कंटीन्यूअस। सो दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। डी पार्ट f of x इक्वल टू मॉड x माइनस 5। इसको रीराइट करते हैं, माइनस x माइनस 5 और x माइनस 5। ये कब हुआ, जब x लेस देन 5 आएगा और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यानी कि अगर मैं इस फंक्शन को नंबर लाइन पे चेक करूं तो ये पॉइंट है 5 के लेफ्ट में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, इसको सोल्व करेंगे तो 5 माइनस x, और राइट में फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, x माइनस 5। हमें एग्जामिन करना है इसकी कंटिन्यूटी का। तो अब हमारे पास तीन केस बन गए बेटा यहाँ पे। एक तो पॉइंट है 5 जिसके ऊपर ये फंक्शन वेरी कर रहा है, लिमिटिंग पॉइंट वैल्यू देता है। एक डोमेन बनी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5 तक, एक डोमेन बनी हमारे पास 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इन तीनों केस में माइनस इन्फिनिटी से 5, फिर 5 और 5 से इन्फिनिटी हमें एग्जामिन करना है दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस और नॉट। सो केस 1 एट x इक्वल टू 5। अब x इक्वल टू 5 पे फंक्शन दोनों तरह से डिफाइंड है, लेफ्ट में भी और राइट में। यानी कि फंक्शन 5 के लेफ्ट में भी डिफाइंड है और 5 के राइट में भी डिफाइंड है। तो हम दोनों ही लिमिट इवैल्यूएट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट कर रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव। अब fx की वैल्यू क्या है, 5 के लेफ्ट में fx की वैल्यू क्या है बेटा, 5 माइनस x। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 5 माइनस x। लिमिट रखो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करो, लिमिट x approaches to 5 positive, limit x approaches to 5 positive f of x is equal to limit x approaches to 5 positive। fx की वैल्यू क्या है बेटे, 5 के राइट में fx की वैल्यू क्या है, x माइनस 5। ये लिखना आ गया 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, दोनों ही वैल्यू क्या आई, 0। अब f of 5 की वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं, f of 5 जहां पर इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू का साइन यहां पे 5 माइनस 5, फिर से कितना आया 0, एज
लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f of 5, therefore f of x is continuous function at x is equal to 5। ये फंक्शन हमारे पास क्या आया 5 के ऊपर कंटिन्यूअस आया। केस नंबर सेकंड, ये तो कंप्लीट हुआ 5 के ऊपर तो कंटिन्यूटी। अब हमें ये चेक करना है क्या इस डोमेन के अंदर जो 5 से छोटे हैं या यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मैंने ले लिया x इक्वल टू a, x इक्वल टू a लेस देन 5, 5 से छोटे नंबर को, यानी कि जो हमने a पॉइंट लिया है वो इस डोमेन को बिलोंग करता है माइनस इंफिनिटी से लेकर 5। यहाँ पर फंक्शन fx की वैल्यू क्या है बेटा 5 माइनस x। चलो अब इसको फिर से कंटिन्यूटी चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a 5 माइनस x और वैल्यू आई बेटा 5 माइनस a। फिर f of a भी वैल्यूएट करो। अब f of a इसके अंदर x की वैल्यू क्या रख दो a, ये भी क्या आ जाएगा 5 माइनस a, दोनों वैल्यू दोबारा से क्या आ गई सेम। एज limit x approaches to a f of x is equal to f of a, therefore fx is continuous for all x is equal to a less than 5। यानी कि इस डोमेन में हमारे पास फंक्शन क्या आया कॉन्टिन्यूअस आया, इस डोमेन में फंक्शन क्या आ गया कॉन्टिन्यूअस। और केस नंबर 3, अब जो थर्ड केस है वो कौन सा आ गया बेटे, इस डोमेन के अंदर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है कि 5 से लेकर इंफिनिटी तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। एट x इज इक्वल टू a ग्रेटर देन 5, a की वैल्यू अब क्या है 5 से लेकर इंफिनिटी तक, ग्रेटर देन 5 वैल्यू है। तो fx क्या डिफाइंड है यहाँ पर 5 से लेकर इंफिनिटी में fx की वैल्यू क्या डिफाइन हुई है x माइनस 5, क्या डिफाइन है x माइनस 5। तो क्या इसको फिर से कंटिन्यूटी चेक करते हैं बेटा, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन x माइनस 5 एट x इक्वल टू a ग्रेटर देन 5। लिमिट इवैल्यूएट करो, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस 5। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, x की वैल्यू रखो a माइनस 5, मेरे पास लिमिट आ गई। f of a की वैल्यू फिर से इवैल्यूएट करो, यहाँ पे x को किससे रिप्लेस कर दो a से, तो ये भी आ गया a माइनस 5, फिर से दोनों वैल्यू क्या आई सेम। एज लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x is equal to f of a, therefore this function is continuous at x is equal to a greater than 5। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस फंक्शन के जो हमने 3 केस डिस्कस किए हैं, 5 के ऊपर फंक्शन क्या आया कॉन्टिन्यूअस, माइनस इंफिनिटी से 5 के ऊपर तब भी फंक्शन क्या आया कॉन्टिन्यूअस, 5 से लेकर इंफिनिटी तक केस नंबर 3 में फंक्शन क्या आया कंटिन्यूअस। यानी कि जो फुल डोमेन थी इसकी माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक, इस पूरी डोमेन में फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। तो तीनों केस को डिस्कस करने के बाद क्या लिखोगे, देयरफॉर f of x is continuous function, f of x is continuous function। स्टूडेंट कोई डाउट हो तो बताओ। अब ये चीज और नोट करो बेटा, इसी के अंदर जो हमने केस नंबर 2 और केस नंबर 3 डिस्कस किए हैं, जब हमारे पास इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह से डेफिनेशन में, जिनमें हमारे पास फर्दर डोमेन को डिवाइड कर रहे हैं हम अलग अलग पार्ट में, तो उनमें हम केस नंबर 2 और केस नंबर 3 जो यहाँ पे डिस्कस किया इसको ऐसे लिखा जा सकता है। केस नंबर 2 में क्या लिखा है, फंक्शन 5 माइनस x विच इज लीनियर पॉलिनोमियल। देखो 5 माइनस x कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं कंटीन्यूअस। तो यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है f of x equal to 5 minus x which is linear polynomial hence continuous। इसको सारे को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम यहाँ पर f of x equal to x minus 5 which is linear polynomial hence continuous। यानी कि इन डोमेन में तो फंक्शन 100% कंटीन्यूअस आएगा। डिसकंटिन्यूटी आ सकती है सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे, लिमिटिंग पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस हो सकती है। आज का टॉपिक बेटी यहीं तक।